میچ ویسے فائنل جیسا تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں بالکل ایکسپیکٹیشنز کے بالکل جو بولتے ہیں امیدوں پہ بالکل نہیں پورا اترا. اس سے بہتر مجھے میچ لگا جو آپ کا 3rd and 4th پلے آف جو تھا جس میں انگلینڈ اور فرانس کے تھا, اس میں 10 گول ہوئے. ظاہر اسپیکٹیکل ہوتا ہے, ٹیمیں جو ہوتی ہیں نا وہ تھوڑی سی پروٹیکٹیو ہوتی ہیں کیونکہ اٹس سچ اے بگ ایونٹ, اتنا کچھ ٹیک پہ ہوتا ہے تو وہ بہت ڈیفینسو. لیکن ارجنٹینا سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ دفاعی چیمپئن ہیں, آپ کا دوسرا کنزیکٹیو فائنل ہے, تو آپ اتنا ڈیفینسو کیسے ہو سکتے ہیں؟ کچھ زیادہ ہی ڈیفینسو پہ چلے گئے کہ کوئی اٹیکنگ کا وہ تھا نہیں نا. لیکن اسپین تو وہی کرتا ہے جو کرتا ہے. اسپین نے تو اپنے وہ رکھا, بال پوزیشن وہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں اور آپ کو اٹیک نہیں کرنے دیتے اور کنسیڈ بھی نہیں کرتے. آپ نے دیکھا پورے مجموعی طور پہ ورلڈ کپ میں صرف 1 گول کنسیڈ کیا, 8 کلین شیٹس, دیٹ از آلسو اے ریکارڈ. اس کے علاوہ میسی کی اگر ہم کارکردگی دیکھیں کہ پوری ارجنٹینین ٹیم کا انحصار ہوتا ہے نا, ان کا ایک سارٹ آف اے گاڈ فادر لائک فگر ہے کہ ان کے لیے جیتنا ہے, کھیلنا ہے. اب ظاہر ہے پوری ٹیم جو ہے ان کا سٹائل آف پلے بہت زیادہ فزیکل ہوتا ہے, وہ آپ کو جو ہے آپ کے جو نیچرل گیم ہے اس کو کھیلنے سے روکتے ہیں, ٹکر کرتے ہیں, فزیکلٹی فیکٹر بہت ہے. اسپین کا میں یہ بولوں گا انہوں نے اس چیز کو بہت اچھا ہولڈ کیا, ان کی ٹیکٹکس میں نہیں آئے, ان کے اینٹکس کے اندر نہیں ہے, اپنا گیم کنٹینیو کرتے رہے. کمنگ بیک جو آپ ابھی بات کر رہی تھی کہ پاکستان میں بھی کل ایک جگہ اسکریننگ پہ گیا ہوا تھا, ہاں, تو میں جب رات کو نکلا ہوں تو میں تو روڈوں پہ رات کے 3 بجے رش دیکھ کے ماشاءاللہ مجھے ایک اتنی اچھی چیز لگی کہ پاکستان میں بھی پیپل ہیو فاؤنڈ این آلٹرنیٹو فٹ بال کا. مطلب انہوں نے اس ورلڈ کپ سے خصوصاً خاص طور پہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں ریلیٹ کیا ہے, چاہے وہ برازیل کی ٹیم ہو, چاہے وہ ناروے کی ٹیم ہو. میں اپنے ویورز کو بتاؤں گا نا, اس ورلڈ کپ میں سب سے بڑی سینسیشن ہالینڈ رہے ہیں. ہالینڈ کو جن لوگوں نے جتنا ان کو پسند کیا ہے, از اے ویری گڈ پلیئر. میں تو اس کو کافی سالوں سے فالو کرتا آ رہا ہوں. مینچسٹر سٹی میں وہ کھیلتے ہیں, اگر ہالینڈ کے فینز ہیں تو اس کو مینچسٹر سٹی کے پریمیئر لیگ اگست میں شروع ہے, آپ اس کو واچ کریں. زبردست کھلاڑی ہے, اتنا زیادہ وہ گولز کرتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. اس کے علاوہ ہم نے ہالینڈ کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ رونالڈو سے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ, لوگوں کی بہت امیدیں تھیں. رونالڈو وہ امیدوں پہ نہیں اتر پائے, لیکن پھر بھی میں رونالڈو فینس کو یہ بولوں گا کہ 41 ایئرز آف ایج اتنی پیک فٹنس اور پرفارمنس پہ کرنا ایٹ دا ہائیسٹ لیول. میسی فینس کو کیا کہنا چاہیں گے, ان کو بھی دلاسا دیں؟ میسی فینس کو یہ بولوں گا کہ ورلڈ کپ فائنل ہارنے سے ایک کھلاڑی کی لیگیسی ٹینٹ نہیں ہوتی ہے, نہیں ہوتی. وہ ایک عظیم کھلاڑی ہے, دنیا کے بہترین کھلاڑیوں میں شمار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ظاہر بہت سارے ارجنٹینین فٹ بال ایکسپرٹ جو ہے نا وہ میراڈونا کو ہی جو ہے نا میسی سے اوپر رکھتے ہیں. میں آپ کو ارجنٹائن کی بات بتا رہا ہوں, تو یہ اگر میسی کل جیت جاتے تو پھر ان کے پاس 2 ورلڈ کپ ہو جاتے, تو شاید یہ میراڈونا کو ایکلپس کر جاتے. ایسا ہو نہیں پایا. حالانکہ یہ میسی کا 3را فائنل تھا. یہ 2014 میں فائنل ہارے جرمنی سے, پھر 2022 میں ہم نے دیکھا یہ جیتے, اور اب یہ فائنل ہارے. تو دیٹ واز ہز 3rd ورلڈ کپ فائنل جس میں ان کو صرف ایک کامیابی ہوئی. تو ارجنٹینا ایک وہ ٹیم ہے جو آتی رہتی ہے. رونالڈو ایک ایسے کھلاڑی تھے, ان کی ٹیم کبھی ورلڈ کپ فائنل میں آئی نہیں ہے. اگر وہ جیتتے تو وہ بہت بڑی بات ہوتی, کیونکہ جب رونالڈو انٹرنیشنل فٹ بال کھیلنا نہیں شروع کی تھی تو پرتگال کے پاس کوئی بین الاقوامی ٹرافی نہیں تھی. رونالڈو نے کھیلنا شروع کی تو انہوں نے یوروز بھی جیتا, 2 نیشنز لیگ بھی جیتی. تو وہ اس چیز کو کلیم کرتے کہ میری کنٹریبیوشن زیادہ ہے. میسی کا برعکس کے میسی کے نہ ہونے سے پہلے بھی ارجنٹائن جو ہے وہ ورلڈ کپ جیتی تھی. تو یہ ایک ڈیبیٹ ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھلاڑی دونوں عظیم ہیں. دا ٹائمز ہیو چینج. جنریشن آف وینیسیوس جونیئر کی اب آ گئی ہے کیلین امباپے کی, اور اب آ گئی ہے ارلنگ ہالینڈ اینڈ لامین یامال. ابھی ہم ارلنگ ہالینڈ کی بات کر رہے تھے. لامین یامال از آلسو نیو فاؤنڈ سینسیشن. بھائی 19 سال کا بچہ, کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس کے اپوزٹ میسی کھیل رہا ہے اور وہ میسی کو, مطلب میسی 11 کو وہ ہرا دے گا؟ کبھی آپ نے سوچا تھا ویسے کہ 19 سال کا بچہ اتنا پوٹینشیل رکھتا ہوگا؟ 20 سال پہلے کسی کو کیسے وہ ہوگا. لیکن آپ دیکھیں نا بارسلونا کلب میں کھیلے تھے, سب کو پتہ ہے میسی. یہ بھی اچھا بارسلونا یہ کرتا ہے کہ یہ بہت ہی چھوٹی عمر سے نا ینگ ٹیلنٹ کو ریکگنائز کر لیتا ہے. انہوں نے میسی کو بہت چھوٹی ایج سے ریکگنائز کر لیا تھا. ارجنٹائن میں ان کو نہیں وہ ہو رہا تھا تو وہ اسپین میں لیا, ان کو رکھا. اچھا میسی کا میں یہ بتا دوں, میسی کو ہیومن گروتھ ہارمون کی ڈیفیشنسی تھی, ان کی گروتھ میں مسئلہ تھا. وہ پوری ٹریٹمنٹ بارسلونا نے ان کی کروائی, ان کو نرچر کیا. ان کی جو اکیڈمی ہے لمیسیا وہاں پہ سیم چیز, کیونکہ یہ بھی اسپین کے ریفیوجی فیملی میں سے تھے, ان کو بھی بارسلونا میں آئے, ان کو رکھا ان کو. تو ان اے وے آپ یہ دیکھ لیں کہ دونوں بارسلونا کی اکیڈمی کے, اور جیسے میسی کی جگہ بارسلونا میں انہوں نے لی ہوئی لامین. تو آپ اس کو ایز اے پاسنگ آف دا ٹارچ سمجھ لیں کہ ایک
लेजेंड ने एक नई प्रोडिजी को, एक न्यू सेंसेशन को टॉर्च पास की है कि यू कैरी द टॉर्च ऑफ फुटबॉल. इसको ऐसा समझे मेसी फैंस. अच्छा, अब जरा मैच की फिर से बात कर लेते हैं. ऐसा लग रहा था स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना के गोल कीपर से हो रहा है और मार्टिनेज की कीपिंग आउटस्टैंडिंग रही. क्या कोई प्रेशर था अर्जेंटीना पर? नहीं, देखें, मैं अब आपको समझाता हूँ. मैन टू मैन वो नहीं compete कर सकते थे. स्पेन वुड हैव वॉक्ड ऑल अराउंड द पार्क. वो इसलिए उन्होंने कहा कि द बेस्ट थिंग है कि आप डिफेंड करो, डिफेंस पे खेलो. और उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि हम किसी तरह एक्स्ट्रा टाइम पे ले जाएं, उसके बाद पेनल्टीज पे ले जाएं. आप देखें ना, जब स्पेन ने गोल भी स्कोर कर लिया था लेट ऑन इजाफी वक्त में, तो उन्होंने फिर थोड़े से अटैक करने की कोशिश की थी कि किसी तरह पेनल्टीज पे चले जाएं, क्योंकि पाउंड फॉर पाउंड उनकी कोई कैपेसिटी नहीं थी और ना इतनी लेग्स थी अर्जेंटीना के पास. स्पेन की बहुत यंग स्क्वाड है, ये बहुत एजिंग स्क्वाड है, तो वो नहीं compete कर सकते थे उस लेवल के ऊपर. अगर आप अर्जेंटीना की मजबूरी तौर पे कारकर्दगी देखें ना, जहां टीमों ने उनको स्पेस दी है, मौका दिया है, तो अटैक किया. उस दिन इजिप्ट ने सैट बैक, अपनी लीड को डिफेंड कर रहे थे, तब ये गए और इन्होंने, तभी मेसी खेल पाते हैं. जब आप मेसी को स्पेस डिनाई कर देंगे तो कल मैच में वो बिल्कुल आपको कहीं नजर नहीं है. इजिप्ट और अर्जेंटीना वाला मैच तो वैसे ही बड़ा मुतनाज़ा उस वक्त, उसमें तो इतनी कंट्रोवर्सीज हो गई थी. अर्जेंटीना के हक में मुतनाज़ा फैसले जितने भी थे वो एक तरफ, और अर्जेंटीना की पूरी परफॉर्मेंस फाइनल के अंदर वो एक तरफ. आपको लगता है कि अर्जेंटीना को अगर ये फेवर्स ना मिलती तो अर्जेंटीना फाइनल तक भी ना पहुंच पाती? मैं आपको 3 मैचेस ऐसे गिनवा देता हूँ ना, आप खुद वो करें. कोबो वर्डे के मैच में, कोबो वर्डे जैसी टीम जो इस वजह से क्वालिफाई की क्योंकि टूर्नामेंट का फॉर्मेट 32 से 48 हुआ, उसने दिखाया, उसने स्पेन आलमी चैंपियन अब उसके साथ ड्रॉ किया. एक ही टीम है जिसने पूरे टूर्नामेंट में स्पेन ने जिसके खिलाफ गोल नहीं किया, वो कोबो वर्डे है. सो वो उन्होंने, और फिर उन्होंने अर्जेंटीना के खिलाफ इतनी अच्छी कारकर्दगी दी कि 2-2 हो गया था. इजाफी वक्त में मैच किया, उनको फेवरेबल डिसीजन मिले. चले वो अर्जेंटीना, फिर मिस्र के खिलाफ क्या हुआ आपने देखा, वहां पे भी इनको इतने फेवरेबल फैसले. कल भी रेफरी ने जो है बहाले मजबूरी इनके खिलाड़ी को दूसरा येलो कार्ड दिखा के सेंट ऑफ किया था. फिर स्विट्जरलैंड वाले गेम में क्या हुआ था, वहां पे भी एक खिलाड़ी सेंट ऑफ किया. तो पेनल्टीज इनको इतनी मिली, 4 तो मेसी ने मिस किए. सो बात ये कि बहुत सारे में बैनुल अक़वामी जरीदे उनकी हेडलाइंस देख रहा था, तो उसमें वो यही कह रहे थे कि फुटबॉल बन. उन्होंने ये बोला है कि फुटबॉल बन. देखिए, आपका ग्लोबल इन्हांसमेंट के लिए ठीक है, अब फीफा ने भी सोचा होगा यार कि फाइनल में तो मेसी ने पहुंचा दिया ना, अब जितना भी कुछ होगा, जितनी भी स्पॉन्सरशिप्स और जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, ग्लोबल स्पेक्टिकल तो बन गया ना. आपके पास एक ग्लोबल सुपरस्टार फाइनल में था. अब व्हाट ही डिड ऑन द फाइनल डे वो एक अलग बात है कि स्पेन वाज ऑलवेज टू गुड एंड टू स्ट्रॉन्ग. वो जिस तरह की फुटबॉल खेलते हैं, तो मैंने तो मतलब यही प्रेडिक्ट किया था कि अर्जेंटीना का कोई चांस नहीं है. आई वॉज होपिंग कि 2-3 ने लो. हाँ, क्योंकि वो नहीं, दे डिडंट हैव द लेग्स ना, तो लेकिन आप देखें, एक गोल डिसअलाउ किया, वो गोल होना चाहिए था, और एक गोल शायद मार्जिनली ऑफसाइड था. तो ऑन द बैलेंस ऑफ प्ले उतना ही होता, लेकिन दिस वाज एन एक्सपेक्टेड रिजल्ट. तो अली, अब इस टूर्नामेंट से ऐसे कौन से खिलाड़ी, जो आपने एक आध नाम भी लिया, सामने आए जो मुस्तकबिल के स्टार बन सकते हैं? देखें, अर्लिंग हालैंड तो अपनी इंग्लिश प्रीमियर लीग के स्टार थे, तो वो तो वहाँ पे गोल्डन बूट जीते आ रहे हैं, और इंग्लिश प्रीमियर लीग मकबूल तरीन लीग है. उसके अलावा विनीसियस जूनियर भी स्पेनिश लीग में स्टार है, रियल मैड्रिड से वो खेलते हैं. एम्बापे भी उन्हीं की टीम में खेलते हैं, वो दोनों एक ही टीम में. किलियन एम्बापे का आपको पता है, मेसी ने इसी वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल्स करने का रिकॉर्ड बनाया था, एम्बापे ने वो तोड़ दिया 3rd एंड 4th प्लेऑफ में बुक करके. एम्बापे इस समय देखिए, एम्बापे अभी इतने यंग हैं और उन्होंने 2018 में वर्ल्ड कप जीत लिया था. आप देखें, लमीन यमाल ने 19 साल की उम्र में जीत लिया. कुछ खिलाड़ियों को कितनी कम उम्र में कितना बड़ा एजाज मिल जाता है. मेसी ने कितनी मेहनत की कि उनको वर्ल्ड कप मिल जाए ताकि उनकी लेगेसी कंप्लीट हो जाए. तो सम गेट इट अर्ली, सम गेट इट लेट. अब लमीन यमाल हो गए या एम्बापे हो गए, ये हालैंड हो गए, विनीसियस जूनियर हो गए. लेकिन मैं कुछ यहाँ व्यूवर्स को बता दूं, पाकिस्तानी फैंस जो ब्राजील के बहुत फैन है, ब्राजील के कोच बहुत अच्छे हैं. अच्छा. इटालियन कोच है कार्लो एंचेलोटी, इन्होंने बड़े बड़े क्लब्स को बहुत बड़े बड़े एजाज़ात जिताए. रियल मैड्रिड के कोच रहे हैं, बड़े एजाज़ात जिताए. ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोचेज इन द वर्ल्ड क्लब लेवल के ऊपर. ब्राजील के वो कोच बने हैं, और ये कब बने हैं? अभी कुछ अरसा पहले ही बने, 1 साल पहले बने, जब ब्राजील की टीम बहुत बुरी हालत थी. 1 साल में पूरा एकदम से इन्होंने टर्नओवर कर. जी, आप देखें ना, ब्राजील
साउथ अमेरिकन क्वालिफायर में क्वालिफाई भी नहीं कर पा रही थी, इनके आने की वजह से साउथ अमेरिका में 5th पोजीशन लेके इस ब्राजील ने क्वालिफाई किया है, वरना ऐसा भी हो सकता था कि ब्राजील वर्ल्ड कप ना आए। तो इन्होंने अब ये फॉर्च्यून्स को टर्न अराउंड करेंगे पाकिस्तानी फैंस के लिए कि आप अगले 4 साल में जब वर्ल्ड कप होगा तब आप ब्राजीलियन टीम को भी देखिएगा, ब्राजीलियन कारकर्दगी को भी देखिएगा, कैसे प्लेयर्स को नर्चर करते हैं, नरिश करते हैं। तो मायूस होने की बात नहीं है। अर्जेंटीना के लिए ऑन द अदर हैंड ये है कि ये एंजो फर्नांडिस जो कल सेंड ऑफ हुए बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत यंग हैं। थोड़ा अर्जेंटीनियंस के साथ एटीट्यूड का मसला है, एरोगेंस बहुत है। फुटबॉल पिच आप देखें ना, कल उन्होंने कितना उकसाने की कोशिश की स्पेनिश प्लेयर्स को, मारा, धक्कम पिल्ली चल रही थी, बहुत ज्यादा धक्कम पिल्ली ऐसा। और जाहिर फाइनल होता है तो रेफरीज भी ये चाहते हैं कि एज ए स्पेक्टिकल खराब ना हो। अब प्लेयर सेंट ऑफ हो जाएगा एक साल, लेकिन उनको मजबूरी में सेंट ऑफ करना पड़े। तो एंजो फर्नांडिस और हुलियन अल्वारेस जो मेसी के साथ दूसरे थे, ये बहुत जबरदस्त खिलाड़ी, अपने क्लब में बहुत अच्छा करते हैं। फ्रांस का आपको पता है, उस्मान डेम्बेले, एम्बापे। फ्रांस आई टेल यू फिर आएंगे। फ्रांस के कोच जो हैं वो डिडियर डिशॉ, वो अब उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। मुझे एक बात बताएं अली, आपका इतना माशाल्लाह जबरदस्त आपकी नजर है गेम के ऊपर, आप मैं जानना ही चाहता हूँ डोनाल्ड ट्रम्प मेसी फैन है? आपको लगता है वो अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे थे? डोनाल्ड ट्रंप मेरे ख्याल से उसके फैन है जिससे अमेरिका ग्रेट अगेन हो जाता है, ठीक है ना। आई थिंक सो मेरा ये चाहे वो रोनाल्डो, क्योंकि आपने देखा होगा रोनाल्डो भी उनसे जाके ओवल ऑफिस में मिले थे और मेसी भी जाके मिले। तो एनीथिंग व्हिच इज गुड फॉर मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप उनके फैन है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथों से ट्रॉफी दी स्पेन को, और वो डोनाल्ड ट्रंप बड़ा इंटरेस्टिंगली पूरा मैच देखते रहे, बल्कि जहाज से भी देखते रहे वो नीचे कि चल क्या रहा है। ये अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं। ये देखिए ये मनाजर है जनाब डोनाल्ड ट्रंप का, बस उनका दिल नहीं चाहता। भी देखिए ना, आपको अगर याद हो तो इनका भी वर्ल्ड कप में हिस्सा था। इन्होंने एक रेड कार्ड जो है वो उसको रिवर्स कराया था, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि जिसके ऊपर फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो, उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन के 72 पार्लियामेंटेरियंस ने जो है एक करारदाद मंजूर कर ली है कि इनके खिलाफ जो है वो किया जाए। क्योंकि देखिए फीफा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सब इलेक्ट होते हैं, कि बिल्कुल ही आप एक जमहूरी ऑर्गेनाइजेशन है, सो गवर्निंग बॉडी है। तो और हर चीज का कोई कार्ड रिवोक करना, वापस कोई भी फैसले कमेटी बैठती है, बिल्कुल कमेटी बैठती है। तो यहाँ से अमेरिकी सदर का फोन जाता है फीफा के सदर, वो तो आपको पता है वो वेनेजुएला के सदर को उठवा लेते हैं, तो फिर यहाँ से फोन और रेड कार्ड तो क्या ही। और दूसरी बात ये कि मैं तो ये हैरान थी कि फीफा वालों ने तो इन्हें कोई एजाज भी दे दिया था, नोबेल प्राइज जब नहीं जीते। जी नॉमिनेट भी कर दिया था। जी जब नोबेल पीस प्राइज सदर ट्रंप नहीं जीते थे तो ये फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने फीफा का पीस प्राइज उनको दिया था। फीफा का पीस प्राइज। आपने शुरू में बात कही कि रात गए, आप खुद भी आपने कहा कि बड़ी बड़ी स्क्रीन्स भी लगी थी, लोग मैच देख रहे थे, आप हैरान हुए पाकिस्तान में इतना क्रेज। हमारी फुटबॉल टीम कब आएगी? हमारी फुटबॉल टीम, देखिए फुटबॉल का शौक बहुत है, फुटबॉल खेलते, मैं हमेशा इस चीज को एम्फसाइज करता हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, ठीक है। फोकस हमारा सिर्फ क्रिकेट पे, देखिए शौक भी लोगों को, टैलेंट सिर्फ लियारी में, ओवरऑल बात कर रहा नहीं ओवरऑल टैलेंट है, ठीक है। अब बात ये होती है ना कि मैं आपको थोड़ा समझा दूं। अब आपने देखा, मैंने आपको लमीन यमाल की एग्जांपल दी कि बचपन से बार्सिलोना ने कर लिया। किसी भी खिलाड़ी को स्पोर्ट में डालने के लिए उसकी बचपन से नर्चरिंग होती है। हम वो बोलते हैं ना, चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे लिव, तो वो जो सीखेंगे वो ही करेंगे। तो हमें यहाँ पे अकेडमीज बनाने की जरूरत है, करेक्ट, डोमेस्टिक सेटअप बनाने की जरूरत है। किसी भी खेल को एक उसकी हाइट पे पहुंचाने के लिए यू नीड टू हैव डोमेस्टिक सेटअप। हमारे क्रिकेट का भी यही हुआ, डोमेस्टिक सेटअप जब हमारा खराब हुआ तो क्रिकेट का भी आप देखें। अब आप ये बता दें कि नेक्स्ट कौन सा सनसनीखेज कोई टूर्नामेंट आ रहा है, कोई चैंपियनशिप आ रही है, हम कब मिलेंगे आपको दोबारा? देखिए अभी तो अगस्त में तो डोमेस्टिक सीजन शुरू हो जाएंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग दुनिया की मकबूल तरीन लीग है, जिसमें सारे क्लब्स होते हैं। उसमें देखें आपको सारे अपने खिलाड़ी देखने को मिलेंगे और बड़ी इंटरटेनमेंट होती है उसके अंदर। वैसे 2026 का यूरो आएगा, नेशंस लीग यूएफा की शुरू हो जाती है। जितनी भी यूरोपियन टीमें ना, इंग्लैंड, फ्रांस, ये आपस में खेलती रहती हैं पूरे। इनके मैचेस सितंबर में भी होंगे, एक इंटरनेशनल ब्रेक सितंबर में होता है, फिर नवंबर में भी होता है, तो ये आपको मैचेस मिलेंगे। लेकिन सबसे मजे की चीज़ है कि आप रियल मैड्रिड को फॉलो करें, आप बार्सिलोना को फॉलो करें, आर्सेनल को फॉलो करें जो चैंपियन है। यहाँ आपको यमाल देखने को मिल जाएगा, एम्बापे देखने को मिल जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि आपके जो पसंदीदा खिलाड़ी हैं वो पूरे साल क्या करते आते हैं। क्योंकि जब भी वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ बहुत से लोग नेमार को वो कर रहे थे। नेमार किसी क्लब फुटबॉल में नहीं खेले, टॉप क्लब में, वो हेल्थ रीजंस की वजह से और दूसरे उनके पर्सनल इश्यूज की वजह से वो बिल्कुल ही क्लब फुटबॉल से होते, तो वो टॉप लेवल पे परफॉर्म नहीं करते। जब भी कोई कौमी टीम में खिलाड़ी आते हैं उसकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देखते हैं ना, तो ऐसा होता है। लवली, थैंक यू वेरी मच अली, बहुत शुक्रिया।